Our next session coming up is a very important session. It's a very important stage on the journey of CKD. If you meet a layman and ask him or her, what is dialysis? I think what they would say is machines and medicines. But if you meet a patient and ask them, what is dialysis? They would say, reorganizing life, discipline, survival. For those of you new to this term, I'm sure there's nobody in this room that's new to this term dialysis, but patients plan their work, their travel, their celebrations, even their energy levels based on dialysis. And this is a crucial part because most patients get lost in this stage. And our next session is just about this topic. It gives me great pleasure to welcome our moderator, and I don't think I could think of anybody more qualified to head this session. As Dr. Sundar said, probably one of the most handsome men in the room. Kamal Shah, the co-founder of NephroPlus, a long-term dialysis patient on dialysis for the last 28 years, will be the moderator for this session. And to join him on stage, may I take the privilege to call upon Dr. Pavitra and Dr. Saurabh Sharma to join us on stage. Over to you, Kamal. Thank you so much, Marianne, and thanks to the Kidney Warriors Foundation and Vasundhara Raghavan for organizing this wonderful conclave and for organizing this topic, a very important topic on dialysis. So first of all, I just quickly introduce our two panelists, Brigadier Dr. Pavitra Manu Dogra, who's Professor and Head Department of Nephrology at the Army Hospital, RNR, New Delhi. He's an MBBS and an MD in Medicine, DM Nephrology from AIIMS, Director of the Armed Forces Organ and Tissue Transplant Authority, member of the International Home Dialysis Consortium, and author of several national and international publications. And we have Dr. Saurabh Sharma, Associate Professor, Department of Nephrology and Renal Transplantation at VMMC and Safdarjung Hospital, New Delhi. He's an MD and a DNB in nephrology and technical expert group for CKD and health promotion of the Ministry of Health and Family Welfare at Government of India. Chair of Dialysis Working Group, International Society of Nephrology. Several other achievements, Dronacharya Award 2021 for exemplary contribution towards continuing medical education in nephrology, and several publications in national and international journals. Given the paucity of time, I request both the panelists to be a little crisp and brief in their answers, and we'll keep it mixed in Hindi and English so that more participants can benefit. So I think when somebody gets diagnosed with end-stage kidney disease, there are several options in front of them. All of us know about hemodialysis and transplantation. Some of us know about peritoneal dialysis, and very few know about conservative management. So that's one more area that all of us need to be aware that there is another option for treatment of kidney failure, which is conservative management, which is devoid of aggressive therapy नहीं होता उसमें जैसे dialysis, transplant वगैरह, लेकिन symptom management पे ध्यान दिया जाता है. तो I think as Kidney Warriors Foundation, nephrologists, patients, all of us need to be aware that there are 4 different options for treatment of kidney failure, not only hemodialysis and kidney transplant. Dr. Saurabh, start with you. Hemodialysis के बारे में थोड़ा एक संक्षिप्त में 1-2 लाइन में बता दीजिए कि hemodialysis मतलब क्या? So first of all, I would like to say for the Kidney Warriors, poetry for the Kidney Warriors, including you, Kamal ji. So poem like तूफानों से जो टकराए वो साहिल क्या जाने, हमने दरिया को भी देखा है किनारा बदलते हुए. So huge applause for all the Kidney Warriors. And continuing to the question, hemodialysis. So hemodialysis we can compare with the RO machine which is there in our homes. So RO machine में क्या होता है, एक पानी जो म्यूनसिपैलिटी से आ रहा है वो जाता है और एक मेम्ब्रेन फिल्टर होता है जिसमें से होते हुए साफ पानी बाहर आता है. सिमिलरली जो हमारा इम्प्योरीफाइड जो ब्लड है वो जाएगा डायलिसिस मशीन में, डायलाइज़र में, और डायलाइज़र में 2 प्रोसेस होते हैं. एक तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिससे कि पानी बाहर निकलेगा, एक्स्ट्रा पानी, और दूसरा होता है ऑस्मोसिस जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्लियर होगा और साथ में यूरिया, क्रेटिनिन और दूसरे मॉलिक्यूल्स, हार्मफुल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर निकल आएंगे. तो ये संक्षिप्त में डायलिसिस. और सक्सेसफुल डायलिसिस के लिए डायलिसिस से भी बढ़कर 3D फ्रेमवर्क होना जरूरी है. 3D में 1 इज़ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दृढ़ इच्छा शक्ति आप सब में होना. साथ में होना चाहिए वो है डाइटरी प्लान, अच्छा डाइटरी प्लान, और डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, डायलिसिस टाइम से कराएं. धन्यवाद. Very, very. 3D is a wonderful framework.
3Ds, a wonderful framework that Dr. Saurabh has given. Moving over to Dr. Dogra, if you could just talk a little bit about peritoneal dialysis, please. Morning to you. Peritoneal dialysis is a form of therapy in which dialysate fluid is put inside the abdomen, and the dialysis takes itself around the intestines. So ये ज़्यादा फिजियोलॉजिकल है और इसमें हॉस्पिटल में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. तो सिंपल है, पेशेंट को खुद ही करना होता है, उसको हॉस्पिटल नहीं जाने की ज़रूरत. खुद पेट में एक ट्यूब डाल देते हैं हम लोग एंड उसके थ्रू डायलिसेट फ्लूइड जाता है एंड किडनी इंटेस्टाइन्स के चारों ओर जो झिल्ली होती है या मेम्ब्रेन होती है उसी से डायलिसिस होता है. थैंक यू सो मच डॉक्टर डोगरा. डॉक्टर सौरभ, आप बताएंगे कि हीमोडायलिसिस के अलग अलग टाइप्स क्या है, अलग अलग जो हो सकते हैं? सो हीमोडायलिसिस के टाइप हम टाइम, फ्रीक्वेंसी, टेक्नोलॉजी और पेशेंट की नीड के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. तो टाइम और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखें तो एक तो कन्वेंशनल हीमोडायलिसिस जो कि 3 times a week 4 hours इन ईच सेशन होता है, वो है कन्वेंशनल डायलिसिस. इसके अलावा 2 तरह के और टाइप हैं. अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो एक होता है शॉर्ट डेली डायलिसिस कि 2 से 3 घंटे डेली 5 बार हफ्ते में करवा के आ जाएं. एंड सेकेंड इज डेली नॉक्चर्नल हीमोडायलिसिस जिसमें डेली रात को 6 से 8 घंटे डायलिसिस होता है. इसके अलावा हम अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो आजकल हाई फ्लक्स डायलिसिस है और साथ में हीमोडायाफिल्ट्रेशन है जो कि अच्छे तरीके से मिडल मॉलिक्यूल्स को भी निकाल देता है और लाइफ एक तरह से मोर्टेलिटी भी कम हो जाती है और कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क कम हो जाते हैं. इसके अलावा अगर एक्यूट किडनी इंजरी है या फिर जब हीमोडायनामिकली पेशेंट स्टेबल नहीं है तो 2 तरीके और हैं, CRRT और SLED, दैट इज सस्टेन्ड लो एफिशिएंसी डायलिसिस एंड कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी. Great. Thank you so much, Dr. Saurabh. Dr. Dogra, if you could just elaborate a little bit more about the different types of peritoneal dialysis. Okay, the peritoneal dialysis are basically divided into 2 parts. One is acute dialysis and other is a chronic dialysis. Now acute dialysis होता है acute kidney injury में जो कि short duration का होता है 48 hours 72 hours के लिए. उसमें एक stiff catheter यूज़ करते हैं, पर हम लोग इस फोरम में उसके बारे में बात नहीं करेंगे. हम इस फोरम में क्रॉनिक डायलिसिस के बारे में बात करेंगे. जो क्रॉनिक डायलिसिस 2 पक्षों में डिवाइड किया जाता है. एक होता है CAPD, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, जो कि पेशेंट को खुद अपने आप करना होता है. दिन में 2-3 बैग्स या 4 बैग्स 2-2 लीटर के 4-4 घंटे के लिए पेट में डालने पड़ते हैं एंड उससे डायलिसिस होता है और डायलिसिस बाहर निकलता है. दूसरा होता है ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस. ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस एक मशीन के द्वारा होता है. उसमें क्या होता है कि एक मशीन में पंप होता है, वो डायलिसिस रात को 2-2 लीटर करके हर एक 2-2 घंटे में डालता रहता है. टोटल 10 लीटर का थेरेपी होता है और अर्ली मॉर्निंग वो बंद कर देते हैं. उसके बाद पेशेंट अपना कैथेटर बंद करके अपना पूरा दिनचर्या कर सकता है. तो वो सिर्फ रात को होता है और कई बार उसमें दिन में भी फ्लूइड डालना होता है. जैसे आइकोटेक्स्ट्रिन डालते हैं, वो 12 घंटे के लिए डालते हैं, लेकिन पेशेंट अपने आप सारा काम करता रहता है. थैंक यू डॉक्टर डोगरा. डॉक्टर सौरभ, अगर आपसे पूछा जाए कि पेरिटोनियल डायलिसिस के मुकाबले हीमोडायलिसिस कैसे बेहतर हो सकता है, इफ़ यू कुड जस्ट एलैबोरेट लिटिल बिट ऑन दैट. सो अगर हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस को कंपेयर करें तो यूनिवर्सली हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा बेहतर है, बट क्योंकि दोनों ही एफिकेसी में, एफिशिएंसी में बराबर हैं, चाहे वो पेरिटोनियल डायलिसिस हो चाहे हीमोडायलिसिस हो. बट हीमोडायलिसिस की कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हीमोडायलिसिस बेहतर हो जाता है पेशेंट की नीड के हिसाब से. तो उसको मैं एक छोटे से फ्रेमवर्क के हिसाब से समझाना चाहूँगा. स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क, STRONG. सो फॉर S, सुपरवाइज्ड केयर. अगर पेशेंट को सुपरवाइज्ड केयर की ज़रूरत है, घर पे वो खुद नहीं कर सकता है, तो वो HD के लायक है. दूसरा इज़ द टॉक्सिन रिमूवल, क्योंकि हीमोडायलिसिस में टॉक्सिन रिमूवल इज़ प्रिडिक्टेबल एंड इट इज़ लाइक वेरी रैपिड. सो अगर कुछ पॉइजनिंग्स या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जब डायलिसिस की जरूरत पड़ जाती है, हाइपरकैलेमिया, सीवियर हाइपरकैलेमिया, तो उसमें हीमोडायलिसिस बेहतर हो जाता है. थर्ड इज़ फॉर R इज़ रिड्यूस्ड एब्डोमिनल डिपेंडेंस. सो अगर एब्डोमन में पहले कोई सर्जरी हो रखी है या फिर एब्डोमन में पहले TB, ट्यूबरकुलोसिस हो रखी है या फिर हम कहीं रिकरेंट पेरिटोनाइटिस के संभावनाएं हैं, तो ऐसे केसेस में, या फिर बहुत ओबीज है, तो उसमें भी हीमोडायलिसिस बेहतर है पेरिटोनियल डायलिसिस से, ऐसा कहा जाता है. O से आता है कि ऑर्गेनाइज्ड हीमोडायलिसिस, मोर ऑर्गेनाइज्ड, बिकॉज एक लोकेशन है, एक टाइम है, वो फिक्स है, आप जाए और करा के आ जाएं. तो O. N से है नो कंटिन्यूअस ग्लूकोज इन द ब्लड. सो
क्या होता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस में ग्लूकोज जो है वो सॉल्यूशन में होता है, जिससे कि ओबेसिटी के या फिर ग्लूकोज के फ्लक्चुएशंस के इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, डिसलिपिडीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि हेमोडायलिसिस में नहीं है. एंड 4G इज ग्रेटर मिडल मोलिकुलर क्लियरेंस बाय द न्यूअर टेक्नोलॉजीज लाइक हीमोडायफिल्ट्रेशन एंड हाई फ्लक्स डायलिसिस, जो कि पेरिटोनियल डायलिसिस से बेहतर हो जाता है. थैंक यू डॉक्टर सौरभ. जब किसी की डायग्नोसिस होती है एंड स्टेज किडनी डिजीज की और वो डायलिसिस के लिए जाना चाहते हैं, तो डॉक्टर सौरभ ने बताया कि किस हालात में हीमोडायलिसिस वुड बी बेटर सोल्यूशन. नाउ डॉक्टर डोगरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इफ यू कुड जस्ट एलैबोरेट अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस वुड पीडी बी मोर सुटेबल फॉर देन एचडी. See, choosing any form of dialysis therapy, it is suitable for the patient. We are in a present context of shared decision making. We discuss with the patient that yes, you want peritoneal dialysis. We give them pros and cons. We discuss with the patient we want hemodialysis with pros and cons. But there are certain situations जिसमें कि peritoneal dialysis patients prefer करते हैं, जिससे independent lifestyle जीना है. उसको दिन में काम करना है, रात को अपने डायलिसिस लगा के सो जाता है. जिसको बाहर घूमना है, अगर एक डायलिसिस का सेशन मिस भी हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ता. पर हीमोडायलिसिस में अगर एक डायलिसिस सेशन मिस हो गया, पोटेशियम बढ़ गया, एसिडोसिस हो गया, तो जिंदगी को खतरा होता है. पीडी में क्या है, वो कंटिन्यूअस डायलिसिस है. और बच्चों में एज वेल एज जो हार्ट फेलियर पेशेंट्स हैं, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कारगर है. तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हम लोग तो पीडी फर्स्ट पॉलिसी ट्राई करते हैं कि पेशेंट्स को पहले 2-3 साल के लिए पीडी पे डाल दें. उतने में अगर किडनी ट्रांसप्लांट हो गया तो हो गया, नहीं तो उसके बाद फिर देखेंगे. बट द रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल टू हीमोडायलिसिस, इफ नॉट बेटर. Great. Thank you so much, Dr. Dogra. डॉक्टर सौरभ, हाई फ्लक्स हीमोडायलिसिस के बारे में आजकल बहुत सुनने को मिलता है, तो इफ़ यू कुड जस्ट एलैबोरेट कि हाई फ्लक्स डायलिसिस हीमोडायलिसिस क्या है और हाउ इज इट बेटर देन लो फ्लक्स डायलिसिस. सो अगर हम देखें किडनीज नेचुरली कैसे काम करती है, तो किडनीज नेचुरली सभी जो हार्मफुल केमिकल्स है उसको शरीर से बाहर निकाल देती है यूरिन के थ्रू. सो हार्मफुल केमिकल्स में एक तो स्मॉल सॉल्यूट्स आते हैं जो कि मेजरेबल हैं, हम डेली प्रैक्टिस में मेजर करते हैं, यूरिया, क्रेटिनिन वगैरह. करीब 58 तरीके के ऐसे मोलिक्यूल्स हैं जो अभी हमने पहचान पाए हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करते हैं. साइटोकाइंस, एडिपोकाइंस और ऐसे तरीके के कई मोलिक्यूल्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करते हैं, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देते हैं, इंक्लूडिंग कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी, इंक्लूडिंग अमाइलोसिस, इंक्लूडिंग अदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. सो जो हाई फ्लक्स डायलाइजर्स होते हैं, वो डायलिसिस है, उसमें ऐसा डायलाइजर यूज़ होता है जिसमें कि मिडल मॉलिक्यूल भी गुजर सकता है, उसमें से निकल सकता है, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा है, उसके स्पोर्स का साइज ज़्यादा है, जिससे कि मिडल मॉलिक्यूल्स भी निकल जाए. तो उसके निकलने से फ़ायदा ये मिलता है कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क जो है वो कम हो जाता है और मोर्टेलिटी कम हो जाती है और एक लंबे टाइम तक डायलिसिस पे सर्वाइव कर सकते हैं. Thank you, Dr. Saurabh. Dr. Dogra, there was a trial recently called the CONVINCE trial that showed a 23% survival benefit with HDF hemodiafiltration over HD. Can you just give a little more details to the patient sitting here on what is HDF and how is it better than HD? जैसे डॉक्टर सौरभ ने बोला, एचडीएफ में जो डायलिसिस होता है उसमें उसकी क्वालिटीज डिफरेंट होती हैं. वो उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें एक एक्स्ट्रा पानी हम लोग के ब्लड में जाता है, जिससे कि कन्वेक्शन होता है. यूजुअल डायलिसिस में डिफ्यूजन होता है और इसमें कन्वेक्शन होता है. कन्वेक्शन का मतलब है कि पानी के प्रेशर के साथ ही वो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और कम से कम 20 लीटर या 23 लीटर एक्स्ट्रा पानी जाता है जो कि निकाला जाता है बॉडी में से. तो उसका एडवांटेज ये है कि एक तो डेथ का रिस्क कम हो जाता है, जो एनीमिया होता है वो थोड़ा बेटर कंट्रोल में रहता है, जो एरिथ्रोपोइटिन की डोज होती है वो थोड़ी कम होती है, फॉस्फेट का कंट्रोल अच्छा होता है, और जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जैसे एमाइलोडोसिस होता है वो कम हो जाता है. सो इसलिए हीमोडायफिल्ट्रेशन बेटर है काफ़ी. इसीलिए उस ट्रायल का नाम जो कन्विंस था वो बेसिकली सबको उससे कन्विंस कर दिया है कि हीमोडायफिल्ट्रेशन बेटर है. Okay. Dr. Saurabh, what kind of patients are more suited to HDF? जी, सो हीमोडायफिल्ट्रेशन ऐसे मरीजों को लेना चाहिए, यंग पेशेंट्स जिनको लॉन्ग टर्म डायलिसिस विंटेज ज़्यादा रहने वाला है, ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जाना चाहते और डायलिसिस पे ही लंबे समय तक रहना चाहते हैं. जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के आंसर में कहा कि इससे मोर्टेलिटी का रिस्क कम होता है, लॉन्गिविटी जो है लाइफ स्पैन बढ़ता है. तो अगर यंग पेशेंट जाना चाहता है कि लंबे टाइम डायलिसिस भी रहे तो हीमोडायफिल्ट्रेशन इज़ बेटर. सेकंड, अगर रिकरेंट इंटरडायलिटिक हाइपोटेंशन है, बार बार बीपी कम हो रहा है डायलिसिस में, ऐसे मरीजों के लिए हीमोडायफिल्ट्रेशन इज़ बेटर. थर्ड, अगर कन्वेंशनल डायलिसिस पे रहते हुए सिम्टम फ्री पेशेंट नहीं रह पा रहा है, इचिंग की प्रॉब्लम बढ़ रही है,
CKD MBD मिनरल बोन डिजीज़ उसका भी पोटेंशियल बढ़ रहा है, और अदर कॉम्प्लिकेशंस क्रोनिक एनीमिया में हैं, इचिंग है, और दूसरी प्रकार के सिम्टम्स जिससे डायलिसिस से क्लियर होने चाहिए नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको हीमोडायफिल्ट्रेशन जरूर ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस किसी पेशेंट में हैं तो उसमें भी हीमोडायफिल्ट्रेशन इज़ बेटर। Thank you. Question to both of you now is, if God forbid, खुदा न खास्ता, you were diagnosed with ESKD, which modality would you choose if you were not a candidate for kidney transplant? It's a quite a difficult question. मैं तो अपनी फैमिली में अभी ये चल रहा है मेरे. The first, I'll rather go with peritoneal dialysis for the first 2-3 years. मैं एक ऑटोमेटेड peritoneal dialysis पे रहूँगा 2-3 साल. अगर उसमें ट्रांसप्लांट हो गया तो बेहतर है, नहीं तो उसके बाद देखूंगा कि मेरे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके बाद मैं हीमोडायफिल्ट्रेशन पे जाऊंगा. Okay. Dr. Saurabh, आप? तो मैं चाहूँगा, अगर ऐसा होता है तो अगर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है तो मैं डेली नॉक्टर्नल हीमोडायफिल्ट्रेशन पे रहना चाहूँगा कि हीमोडायफिल्ट्रेशन भी हो और डेली मैं डायलिसिस कर सकूँ, जिससे कि जो हार्मफुल मेडिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनका भी क्लियरेंस मुझे मिले. तो ऐसा मेरा मानना है. Great. Thank you so much. So I think the takeaway message for all of us is that when anybody is diagnosed with end-stage kidney disease, they should be educated about all the 4 modalities that are possible for somebody who's diagnosed with that disease. And these days, with the advancement we heard in the previous panel, बहुत सारे ऐसे advancements आ चुके हैं जिससे dialysis patients भी बहुत साल तक, 20, 30, 40 साल तक dialysis पे रह सकते हैं. Of course, transplant is the best option. लेकिन अगर ट्रांसप्लांट फॉर वट एवर रीजन इज नॉट पॉसिबल, इवन ऑन डायलिसिस इट इज पॉसिबल टू लीड अ वेरी कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ. They can work, travel, exercise, have fun, do things that healthy individuals do. The key is to get good quality dialysis, to have a positive frame of mind. Patients को बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए जिंदगी के प्रति. They should be able to want to live longer. They should be able to take proactively steps, discuss with their doctor how I can lead a normal life despite being on dialysis. Thank you so much to both the panelists, and thank you to Kidney Warriors Foundation for hosting this panel.